आप साइंटिफिक गवर्नमेंट एक सॉफ्टवेयर है, आप उस रेजोल्यूशन को भी डालिए और मेरी अमेंडमेंट्स को भी डालें। अगर वो बोले ये सेम है, मैं माफी मांगूंगा। आपके रेजोल्यूशन में तो 370 का नाम ही नहीं है, वहां तो एप्लीकेशन का 2019 का नाम नहीं है, रिऑर्गनाइजेशन एक्ट का नाम नहीं है। आपका है कि शादी है, शादी का कार्ड है, न उसमें दुल्हन का नाम है न दुल्हे का नाम है। मैंने तो बाज़ाब्ता आपको 370 का बोला है। यू कांट कंपेयर। देखिए आप पढ़े लिखे ऑनरेबल मेंबर मैं आपसे बताना बात करो, आप बात करो। ये उनके और स्पीकर के दरमियान है, आपकी बात करने की जरूरत नहीं है, आपके बात करने की कोई जरूरत नहीं। वही मैं कह रहे हैं, वही मैं कहने जा रहा हूँ, सवाल है जब हमने कैंपेन में तो आप 370 बोलते थे, तो इलेक्शन जीतने के बाद स्पेशल स्टेटस कहां से आ गया? इसकी तो कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी नहीं। अच्छा, मुझे ये बताइए आप, स्पेशल स्टेटस का मतलब क्या है? यूटी ऑल्सो, इट कुड बी यूटी। स्पेशल स्टेटस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो स्पेशल स्टेटस जम्मू एंड कश्मीर को दिया गया था वो इनकॉर्पोरेटेड 370 में है। बस 370 वो दफा है 35A जिसका आपने जिक्र किया है। अब सुन लीजिए ना, ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में चूंकि Special status does not mean Article 370. Special status does not cover what has been done to us on 5 August 2019. It does not cover Reorganization Act. Special status could even be a UT. Are we fighting for a UT? Special status is a very broad. मुझे बताइए, it does not necessarily mean 370. But what is the harm in putting it in front of the House? ये अक्रंस को किस तरह आप इस्तेमाल करेंगे मुझे समझाइए। It is not a matter of recent occurrence. When I say that rigging of 87 brought in violence, that those 1 lakh people who have died. Sir, let me speak, sir. Honorable Speaker, sir, I want to speak, sir. Are you telling me that you don't care about the people who are in the graves? ये गेम है चैंपियन। And not do these things which have brought in misery and death and destruction to this place. And you are saying no. कोई भी चीज, it's not recent. Sir, it's not recent that you pass a rule on public safety act. All I am saying is that it should be as has been mentioned in your manifesto, that you should make it that in your Lieutenant Governor साहब का जो speech था, you should make it a point that at least you have a desire, that you have an intention to repeal the Public Safety Act. How is it that repealing Public Safety Act at the time of elections is within the ambit of law and comes outside the ambit of law the moment you win? You can't do it. For the present, you cannot do it unless the statehood is restored. It cannot be done. It cannot be done till that time. That is why I have disallowed it. Now, जो आपके जो हमने परमिट किए हैं, एडमिट किए हैं, जो एडमेंट्स किए हैं, उनको मैं पढ़ा हुआ तस्वीर करता हूँ। अब मैं इसके बारे में अगर आप कहते हैं एक सेकंड सजाद साहब, अगर आप कहते हो वेरिफिकेशन इज रिलेटेड टू हो, आई एग्री, पुलिस इज नॉट आवर डोमेन, बट पुलिस डजंट डील विद टेररिज्म ओनली, पुलिस डील्स विद नॉर्मल पुलिसिंग जिसमें क्राइम भी आता है। 1 2 जो वेरिफिकेशन का मामला, इट्स अबाउट सर्विसेज आर प्रोवाइडेड मेड under rules by UT. We appoint. And who impedes? Another area. Verification, जो rule है, it doesn't qualify. वेरिफिकेशन किस चीज की होती है? वेरिफिकेशन इंडिसिडेंट कैरेक्टर की होती है। कौन देखेगा? Rules, UT government. UT government will have to, GAD will have to make rules. GAD will have to make rules. You can, for discussion B, if we want a discussion on police, I said that barring terrorism, जितनी भी policing है, that can be brought to this forum for discussion. 1 2 जब वेरिफिकेशन होती है, वेरिफिकेशन के रूल्स जो है, they are so stringent.
Even court intervention is not allowed. कोर्ट ने फैसला दिया, वेलकम से एक कोर्ट का फैसला आया, रिसेंटली आया कोर्ट का फैसला। मुझे लगता है कि जो आपके अप्रहेंशन से वो दूर हो गए होंगे कोर्ट के regarding police verifications, sir, I have been a victim of police verification. When I went for a passport in 2012, एक तो होता है आप अप्लाई करते हैं फिर रिजेक्ट करते हैं. I was banned from applying. I was under pact that before you apply you have to seek permission. But this form of collective punishment is only in the state of JNK. हम तो सिर्फ ये कह सकते हैं कि जो बाजू के पंजाब में रूल है वही हमको भी करें. आर वी नॉट इक्वल सिटीजन ऑफ इंडिया? आपके कंसर्न जो है सर वो देखिए, मैं आपके कंसर्न को अप्रिशिएट करता हूँ. देखिए लोन साहब आपके कंसर्न को मैं अप्रिशिएट करता हूँ. अब सुन लीजिए, हम भी गए, वी हैव गॉन टू द कोर्ट, सर वहां स्पीकर साहब वहां बैठे हैं, यहां बैठे हैं, पहले आप उनको बताइए. आप कैसे बोलिए? अच्छा Sir, we have gone to the court. There is not a single piece of legal evidence on the basis of which they can deny police verification because he is related to someone. It's all word of the mouth, and unfortunately they started probably in 1996 जब आप लोग थे. खैर कोई बात नहीं, we will not go into that. We need to discontinue it now. And we can put it there that is our intention, that our children should not be punished for something that their father has done, or their brother has done, or their cousin has done. It is primitive. How can we allow it? And how can this assembly keep quiet? Just tell me. हम कैसे चुप कर सकते हैं कि हमारे बच्चों को किसी जगह सिलेक्ट होते हैं, वो मेहनत करते हैं, और आप बोलते नहीं आपके चाचे का, बेटे का, ताए का कोई जो है उसको नहीं गया, उसमें तो चाहिए नहीं आया जो सिंगल केस जो वो नहीं आया जो सर आपको नहीं सुनना है. आई वॉक आउट बिकॉज यू हैव नॉट अप्लाई टू अदर केस ऑल्सो. अब हो गए ये क्लोज, इट इज क्लोज हो गए, हमारी रूलिंग दे दी. आई कैनॉट अलाउ इट, आई कैनॉट परमिट इट, एंड स्पीकर रूलिंग इज फाइनल. प्लीज टैक्सी रखिए, टैक्सी रखिए.